Hi everyone, good evening everybody. Welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to start with class 2 on modern Indian history from the book Spectrum that we are going to cover. तो आज हम Spectrum की किताब से class 2 conduct कर रहे हैं. This is the second session, okay, on Spectrum series that we are going to conduct. Now when we start with Spectrum, we have to study Spectrum from the perspective of both prelims and mains. The most important topics we are going to cover. हम सबसे important topics ही cover करने जा रहे हैं, ठीक है. हम बिल्कुल अपना time waste नहीं करेंगे, exam के perspective से ही पढ़ने वाले हैं. We are going to study from the perspective of exam only. Okay, so rest assured, let's start the session. Also we are going to cover today doctrine of lapse, subsidiary alliance, revolt of 1857, Anglo-Maratha wars. We are also going to cover Battle of Plassey, Battle of Buxar. These are the important topics that we will cover today. The class PDF will be uploaded on our Telegram channel, Simplifying UPSC with Ease. अब वहाँ से class के PDF को download कर सकते हो, ठीक है. चलो, let's start the session then. I hope all of you are ready. Before we start the session, here's a small announcement for all of you. Unacademy has launched Unacademy Combat. This free all India test is going to conduct, it is going to be launched on 17th of Jan 2021, that is tomorrow. कल आपका Unacademy Combat होने वाला है 17 जनवरी 2021 11 बजे. एंड दिस कॉम्बैट इज़ अ फ्री टेस्ट सीरीज, ऑल इंडिया बेसिस टेस्ट सीरीज इट इज़, एंड इट्स द मोस्ट कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएसई बैटल. इट्स नॉट जस्ट अ टेस्ट सीरीज, इट्स इन अ गेम वर्जन. ये गेम फॉर्मेट में टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जा रही है अनअकैडमी के द्वारा. ओवर हियर यू कैन सी दैट यू विल बी गेटिंग योर ऑल इंडिया रैंक. आफ्टर एवरी क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशंस फॉर इट, एंड यू विल बी गेटिंग योर नेम इन द लीडर बोर्ड. आपके ऑल इंडिया रैंक जो है वो आपको लीडर बोर्ड में हर चैलेंज के बाद दिख जाएगी. प्लस यू आर गोइंग टू गेट अमेजिंग प्राइसेस, एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स इन दिस टेस्ट. Now there will be 60 questions, 13 challenges and 45 minutes time in total. Okay, fortnightly test है, relative scoring भी आपको मिलने वाली है इस टेस्ट में. Plus if you score rank between 1 to 3, then you are going to get free of cost 3 months UPSC CSE GS Unacademy Plus subscription. If you score rank from 4 to 150, then you are going to win the ₹1000 Amazon vouchers. ठीक है, तो ये आपको रिवॉर्ड्स भी मिलने वाले हैं. यू हैव अ चांस टू विन योर फ्री सब्सक्रिप्शन ऑन Unacademy Plus as well as the vouchers on Amazon. Okay, so participate in this test. What you have to do is you have to go on to the Unacademy learning app. Then in the test section over here, learning app पे test section में जाओगे. This is the combat test. You have to enroll in the test. Then there will be a prompt in which you have to type the code to unlock this test free of cost. आपको free of cost ये test unlock करना है, तो आपको ये code use करना है Harpita 10, जिससे आप free of cost ये test दे सकते हो, ठीक है. This code is going to help you to unlock the free plus experience on Unacademy learning app. Use this code, click on the link given below in the description box and enroll in this combat as soon as possible. It will be launched tomorrow 11 AM in the morning. 2 hours का टेस्ट होगा सुबह 11 बजे. इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है. ये आज की क्लास का इंडेक्स है. दीज आर द कंटेंट्स ऑफ टुडेज क्लास दैट वी आर गोइंग टू कवर. वी आर गोइंग टू कवर एंग्लो मराठा वॉर्स, ठीक है. वी आर गोइंग टू कवर बैटल ऑफ प्लासे, बैटल ऑफ बक्सर, रॉबर्ट क्लाइव, रिवोल्ट ऑफ 1857, सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. दीज आर द टॉपिक्स. बहुत छोटे टॉपिक्स है, आपको पता ही है. इफ़ यू आर अ सीरियस यूपीएससी सीएसई एस्पिरेंट यू विल नो दैट दीज आर वेरी स्मॉल टॉपिक्स. बहुत छोटे टॉपिक्स हैं, ओके. ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, कम से कम 1.5 घंटे का टाइम लगेगा कवर करने में, ठीक है. छोटे टॉपिक्स हैं, बट अगर आप खुद पढ़ने बैठोगे तो फिर बोर हो जाते हैं, राइट. अकेले अकेले खुद पढ़ते हैं ना हिस्ट्री, तो थोड़ा बोरियत हो जाता है. क्लास में पढ़ोगे तो थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा, ओके. सो इफ़ यू स्टडी हिस्ट्री on your own self, you can study it, self preparation you can do it, but then history becomes a little bit boring, right. All these topics at a stretch, but in the class it will become interesting. क्लास में आपका स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है. प्लस यू विल बी मेकिंग नोट्स ऑल्सो साइमल्टेनियसली, ठीक है. आप क्लास पे साइमल्टेनियसली नोट्स बनाओगे. यू ऑल नो दैट इन माई क्लासेज यू हैव टू मेक नोट्स साइमल्टेनियसली. सबको अब तक पता चल गया है कि मेरी क्लासेज में आपको साइमल्टेनियसली नोट्स बनाने होते हैं. एंड नोट्स बनाने से क्या होता है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू मेक नोट्स, योर रिटेंशन पावर इंक्रीज, ठीक है. आपकी रिटेंशन पावर इंक्रीज होती है, योर रिटेंशन पावर विल इंक्रीज, ओके. दैट इज वाई I request the students in my class to make notes simultaneously, ताकि आपका दिमाग ना काम करता है, ठीक है. when you make notes simultaneously in the class your brain works, ठीक है. so note making is a very nice process. You should
डेवलप दिस हैबिट ऑफ नोट मेकिंग. चलो, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले. So over here we are going to start with first the important battles, two very important battles from the perspective of mains. First is the battle of Plassey that we are going to cover. पहला बैटल जो हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में वो है आपका बैटल ऑफ प्लासे. ठीक है. Now when we talk about battle of Plassey, what kind of question they can ask from the battle of Plassey? Question can be, the battle of Plassey marked the beginning of political hegemony of the British East India Company. ठीक है. नाउ द इम्पॉर्टेंट वर्ड ओवर हेयर इज हेजीमोनी. ठीक है. हेजीमोनी का मतलब क्या होता है, यहाँ आप देखोगे दिस इज हेजीमोनी, द वर्ड इज गिवन. ठीक है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेजीमोनी? इसका मतलब होता है कंट्रोल बाय वन कंट्री. राइट इट डाउन, कंट्रोल बाय वन कंट्री. ठीक है. दैट इज नोन एज हेजीमोनी. और यू कैन से समूह विशेष के भीतर एक देश या संगठन का दूसरे पर आधिपत्य. ठीक है. उसको हम हेजीमोनी बोलते हैं, प्राधान्य, डोमिनेशन. दैट इज हेजीमोनी. ठीक है. कंट्रोल बाय वन कंट्री ओवर अदर कंट्रीज, यानी कि एक कंट्री दूसरी सभी कंट्रीज के ऊपर दबाव बनाए रखे हैं, वो हेजीमोनी है. ठीक है. सो बैटल ऑफ प्लासे मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ पॉलिटिकल हेजीमोनी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. बिफोर बैटल ऑफ प्लासे द ब्रिटिशर्स वर ट्रेडर्स. बैटल ऑफ प्लासे से पहले ब्रिटिशर्स ट्रेडर्स थे. बिफोर द बैटल ऑफ प्लासे दे वर जस्ट बिजनेसमैन. ओके. बट आफ्टर बैटल ऑफ प्लासे दे फाइनली स्टार्टेड देयर पॉलिटिकल डोमिनेशन. बैटल ऑफ प्लासे के बाद इन्होंने शुरू कर दिया अपना पॉलिटिकल डोमिनेशन, पॉलिटिकल दबाव. ठीक है. ये आपको इस पे कमेंट करना है. यू हैव टू कमेंट ऑन दिस. क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट? यस, प्लीज लेट मी नो. क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को तो मुझे बता दो, ताकि अब हम आगे समझ सकें. बिकॉज इफ क्वेश्चन इज नॉट क्लियर देन यू कैन नॉट राइट एनी आंसर. ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द प्रिलिमिनरी परस्पेक्टिव दैट यू शुड रिमेंबर इज, ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो पढ़ना है वो ये है. सो फ्रॉम द प्रिलिम्स परस्पेक्टिव व्हाट शुड बी रिमेंबर्ड इन दिस बैटल ऑफ प्लासे. प्रीलिम्स के लिए आपको ये पढ़ना है कौन से ईयर में हुआ था, इन विच ईयर दिस बैटल टुक प्लेस. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ दिस बैटल. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हु फॉट द बैटल. ठीक है. यानी कि व्हेन, वाई और हु. ठीक है. ये आपको पढ़ना है. एंड द इफेक्ट और द इम्पैक्ट ऑफ द बैटल. ऑलवेज रिमेंबर whenever you study any event in history, remember the year, remember the reason why it happened and who were the participants. किन्होंने पार्टिसिपेट किया, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ईयर याद रखना है. ठीक है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अ टेक्निक. मैं आपको एक टेक्निक बता देती हूँ. यू कैन क्रिएट टेक एन A4 साइज शीट ऑफ पेपर. एक A4 साइज शीट ऑफ पेपर ले लो एंड क्रिएट दिस टेबल इन ऑर्डर टू रिमेंबर द ईयर्स एंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स फॉर प्रीलिम्स. ठीक है. यहाँ पर आप लिखोगे ईयर, यहाँ पर आप लिखोगे इवेंट, यहाँ पर आप लिखोगे हु, दैट मीन्स हु पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट, एंड वाई, और यहाँ लिख दोगे वेयर. ठीक है. सो वॉट एवर ईयर, वॉट एवर इवेंट यू स्टडी, वॉट एवर बैटल वॉर यू स्टडी इन हिस्ट्री, मेक श्योर यू आर मेकिंग दिस नोट. इस फॉर्मेट में आप नोट बना रहे हो. ठीक है. यहाँ पर आप ईयर लिखोगे. सो बैटल ऑफ प्लासे हैपेंड इन 1757. डेट, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द डेट. डेट याद रखना जरूरी नहीं है इतना. इफ यू रिमेंबर द ईयर दैट इज गुड. If you even forget the date, no issues, but do not forget the year. Okay, so here write the year. यहाँ पर आप लिखोगे Battle of Plassey, BOP, event was Battle of Plassey. Now who participated in this Battle of Plassey? On one side we had the Britishers, एक साइड पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी. On the other side we had the Bengal province. हमारे पास यहाँ पर बंगाल प्रोविंस था, and the French East India Company was also supporting Bengal. ठीक है. तो ऑन वन साइड वी हैड द ब्रिटिशर्स, ऑन द अदर साइड बंगाल प्रोविंस एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी. ओके, पॉइंट क्लियर हो गया. नाउ व्हाई दिस बैटल वाज फॉट, वी विल अंडरस्टैंड द रीजन. ओवर हियर आप ये भी लिख सकते हो स्टार डाल के कि कौन जीता, हु वन द बैटल, दैट ऑल्सो यू हैव टू मेंशन. हियर ब्रिटिशर्स वन द बैटल. यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने ये बैटल जीत लिया था. ठीक है. बिकॉज ऑफ दिस बैटल ओनली ब्रिटिशर्स पॉलिटिकली स्टार्टेड डोमिनेटिंग इन इंडिया. इस बैटल को जीतने के बाद ही तो पॉलिटिकल डोमिनेशन शुरू हुआ. ठीक है. सो लाइकवाइज यू हैव टू क्रिएट अ लिस्ट, यू नो, व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री. जब हिस्ट्री की बात आती है तो इसी तरीके से लिस्ट बनाना है. ठीक है. सो आई होप यू आर मेकिंग दीज काइंड ऑफ टेबल्स
मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप इस तरीके की टेबल बना रहे हो, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स गोइंग टू हेल्प यू फ्रॉम इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिवीजन। रिवीजन के टाइम पर आपको बहुत हेल्प करने वाली है टेबल, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। सो नाउ बैटल ऑफ प्लासे इट हैपेंड ऑन जून 23, 1757। जून 23, 1757 पे ये बैटल होता है। नाउ वेयर वॉज दिस बैटल फॉट, कहाँ पर ये बैटल फॉट हुआ था? इट इज नेम्ड एज बैटल ऑफ प्लासे। सो प्लेस वॉज पालाशी, जहां पर ये बैटल हुआ था उसका नाम था पालाशी, ठीक है, विच इज इन बंगाल। दिस पालाशी प्लेस इज इन बंगाल, ठीक है। सो इन पालाशी, और यू कैन से पालाश, आप पालाश भी बोल सकते हो, ये बैटल हुआ था, ठीक है। एंड इन इंग्लिश इट इज प्रोनाउंस्ड एज प्लासे। इंग्लिश में इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? प्लासे बोलते हैं। इन इंग्लिश इट इज नोन एज प्लासे, दैट इज वाई इट इज नोन एज बैटल ऑफ प्लासे, ठीक है। एंड पालाशी इज अ विलेज इन बंगाल। पालासी जो है ना वो एक विलेज है, गांव है बंगाल में जहां ये बैटल हुआ था। सो द इंग्लिश मैन यूज टू कॉल इट प्लासे, ठीक है। तो इट दैट इज वाई इट वॉज नोन एज बैटल ऑफ प्लासे, इसीलिए इसको बैटल ऑफ प्लासे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? तो प्लीज मुझे बताएं। इफ द पॉइंट इज क्लियर लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके, पॉइंट क्लियर, चलो ठीक है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बैटल ऑफ प्लासे, स्टार्ट मेकिंग नोट्स विद मी इन द क्लास, जल्दी से मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट बैटल ऑफ प्लासे, फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज, पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, दैट इट इज अ मेजर टर्निंग पॉइंट। राइट इट डाउन, इट इज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इन दी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो हमारे आधुनिक भारत के इतिहास में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। दिस लाइन यू कैन स्टार्ट एज योर ओपनिंग लाइन इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपका जो इंट्रोडक्टरी लाइन होगी, इन दिस क्वेश्चन योर इंट्रोडक्टरी लाइन यू कैन स्टार्ट विद राइटिंग दैट द बैटल ऑफ प्लासे वॉज द मेजर टर्निंग पॉइंट इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। दैट लेड टू, राइट इट डाउन, दैट लेड टू द कंसोलिडेशन of the British rule in India, the consolidation of British rule in India, यानी कि भारत में ब्रिटिश का जो रूल था वो कंसोलिडेट हुआ, यानी कि एकत्रित हुआ। ब्रिटिश रूल एकदम कंसोलिडेट हुआ, एक्यूमुलेट हुआ, एकत्रित हुआ और डोमिनेशन इंक्रीज हुआ इस बैटल के बाद। आफ्टर दिस बैटल द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल वाज सीन इन इंडिया एंड फाइनली द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड देयर पॉलिटिकल हेजिमोनी। ब्रिटिशर्स ने पॉलिटिकली अब अपने आप को डोमिनेट करना, यहाँ पर अपने आप को दबाव अपना क्रिएट करना, प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। सो द रियल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ऑफ द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड इन इंडिया बिकॉज ऑफ बैटल ऑफ प्लासे, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासे। पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ तक सभी को? नाउ दिस बैटल ऑफ प्लासे, राइट इट डाउन, दैट इट वॉज फॉट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो बैटल ऑफ प्लासे है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और बंगाल के नवाब के बीच में लड़ा गया था। फॉट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी, विच ईस्ट इंडिया कंपनी? द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बिकॉज एट दैट टाइम वी हैड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो, ओके। So this battle was fought between the British East India Company, which was headed by Robert Clive, जिसमें जो हेड थे वो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है। वर्सेस at the other side was Nawab of Bengal. NOB means Nawab of Bengal, who was सिराजुद्दौला। कौन थे ये? ये थे सिराजुद्दौला। नाम याद रखिएगा, रिमेंबर द नेम, ठीक है। नवाब ऑफ बंगाल, यू कैन नॉट जस्ट राइट नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, बिकॉज देवर मेनी नवाब्स, सो यू हैव टू बी स्पेसिफिक ओवर हेयर। आपको नाम याद रखना है, सिराजुद्दौला, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। एंड सिराजुद्दौला वॉज हेल्प्ड बाय द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रेंच ने हेल्प किया था सिराजुद्दौला को इन दिस बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। स्टिल द ब्रिटिशर्स वन द बैटल बिकॉज ऑफ द क्लेवर माइंड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जितना चालाक था उसकी चालाकी का नतीजा क्या हुआ कि भाई ब्रिटिशर्स जीते, ठीक है। एंड रॉबर्ट क्लाइव के पास जो आर्मी थी वो भी कम थी, बट इनकी स्ट्रैटेजी इतनी स्ट्रांग थी कि ये इस बैटल को जीत गए। दैट इज वाई इट इज सेड इफ योर स्ट्रैटेजी इज स्ट्रांग, इवन इफ यू हैव लेस टाइम यू कैन क्लियर एनी एग्जाम। अगर आपकी स्ट्रैटेजी स्ट्रांग है ना, चाहे आपके पास समय कम है, आप फिर भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो, ओनली इफ योर स्ट्रैटेजी इज स्ट्रांग, ठीक है। और इफ योर स्ट्रैटेजी इज नॉट स्ट्रांग, टेक 1 year 2 year, अ पर्सन कैन नॉट क्लियर द एग्जाम। स्ट्रैटेजी स्ट्रांग नहीं है तो 1 साल ले लो, 2 साल ले लो, नहीं होगा। बट अगर आपकी स्ट्रैटेजी एकदम टू द पॉइंट है, सटीक है, एक बारी में निकल जाएगा, ठीक है। सो द गेम ओवर हियर वॉज ऑफ स्ट्रैटेजी ओनली। यहाँ पर जो चालाकी थी ना वो स्ट्रैटेजी की ही थी, ठीक है।
यहाँ दिमाग लगाया रॉबर्ट क्लाइव ने। इनके पास आर्मी कम थी, द ट्रूप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव वॉज वेरी स्मॉल, बट देन रॉबर्ट क्लाइव वॉज अ वेरी ग्रीडी पर्सन एंड वेरी स्ट्रैटेजिकली क्लेवर पर्सन, ठीक है। तो ही यूज्ड हिज माइंड टू मैनिपुलेट द आर्मी ऑफ नवाब ऑफ बंगाल। सिराजुद्दौला की आर्मी को इन्होंने मैनिपुलेट किया, दिमाग से खेला। हिज आर्मीज फिजिकल स्ट्रेंथ वॉज वेरी लो, इनका फिजिकल स्ट्रेंथ काफी लो था, बट हिज मेंटल स्ट्रेंथ वॉज स्ट्रॉन्ग। सो व्हाट ही डिड, ही मैनिपुलेटेड द आर्मी ऑफ सिराजुद्दौला एंड दैट इज वाई थ्रू द माइंड गेम ही वन दिस बैटल। इसीलिए दिमाग लगाकर इन्होंने ये बैटल जो है जीत लिया। साम दाम दंड भेद, ये यूज होता है आपके बैटल्स के दौरान, जो भी युद्ध होते थे ना उसमें साम दाम दंड भेद यूज होता था। बाय हुक और बाय क्रूक विन द बैटल, दिस वाज द पॉलिसी ऑफ द रूलर्स एट दैट टाइम, ठीक है। सो रॉबर्ट क्लाइव यूज द सेम पॉलिसी, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ दिस बैटल, ये जो बैटल है इट वाज अ वेरी हिस्टोरिक बैटल, काफी हिस्टोरिक बैटल है। तो पहला क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर यू कैन सी इज व्हाट इज द बैटल ऑफ प्लासे। ये बैटल ऑफ प्लासे क्या है, let us understand that. BOP means Battle of Plassey. Okay, write it down. It is a battle, इसको लिख लो, it is a battle between the East India Company force which was headed by Robert Clive, जिसके नेतृत्व किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, and सिराजुद्दौला, किसके बीच में था, रॉबर्ट क्लाइव एंड we had the other party was सिराज-उद-दौला who was the नवाब of Bengal। ये कौन थे, ये बंगाल के नवाब थे, he was the नवाब of Bengal। okay, and why this happened, this battle happened, so write it down। यहाँ पर आप मेन पॉइंट नंबर 2 लिख लीजिए, that the increased misuse मतलब गलत यूज करना, misuse means wrongful usage, the increased misuse by East India Company officials, ठीक है, बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स ऑफ द ट्रेड प्रिविलेजेस इन्फ्यूरिएटेड और एंगर्ड सिराजुद्दौला, ठीक है। तो सिराजुद्दौला को इस बात से नाराजगी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं वो इनको जो ट्रेड प्रिविलेजेस, ट्रेडिंग राइट्स दी जा रही हैं, बेनिफिट्स दिया जा रहा है, उसका गलत यूज कर रहे हैं। ऑल द ब्रिटिश मिनिस्टर्स, ऑल द ब्रिटिश ऑफिसर्स, दे वर नॉट using the rights, the privileges given to them by Sirajuddaulah, without corruption, ठीक है। तो गलत तरीके से यूज हो रहे थे। There were rampant increase of corruption in Bengal. The trade privileges were not being used properly. They were being rampantly misused, right? And this angered Sirajuddaulah. सिराजुद्दौला को इसी बात का गुस्सा था, ठीक है। एंड सिराजुद्दौला in the beginning period, initially he was giving warnings, he was generating warnings for the East India Company. Initially warnings दिए जा रहे थे, but Robert Clive and the other ministers or the officers of East India Company, they were not paying any heed. कोई attention ही नहीं दे रहा था सिराजुद्दौला को, ठीक है, सुननी ही नहीं है। They were determined that we are going to misuse the freedoms given to us, privileges given to us, because we are now slowly thinking of entering into the political domain of India, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। सो ऑल द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स, दे वर नॉट टेकिंग एनीथिंग seriously. They were taking the privileges, benefits given to them for granted, and they did not even respect the Indian rulers. जितने भी इंडियन लोकल रूलर्स थे उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था, ठीक है। सो द बेसिक कॉजेज ऑफ दिस बैटल वर, इस बैटल के जो कॉजेज थे वो क्या थे। The first reason is the rampant misuse, write it down, the rampant misuse of trade privileges, which were given to Britishers by Nawab of Bengal, by NOB, Nawab of Bengal, okay। second cause क्या था इस बैटल का, second reason of this battle was the non-payment of tax and duty, ठीक है, by the workers of ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वर्कर्स थे ना ही टाइम पे टैक्स पे करते थे, ना ही कोई ड्यूटी पे करते थे। दैट इज अनदर रीजन वाई सिराजुद्दौला वॉज इन्फ्यूरिएटेड ऑन दी टुवर्ड्स दी ब्रिटिशर्स। ये दूसरा रीजन है, ठीक है, कि सिराजुद्दौला क्यों गुस्सा थे।
पॉइंट क्लियर हो गया। अब ड्यूटी कहाँ देनी पड़ती थी, जब आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराना है, ये तो आपको पता है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, इतना तो आइडिया होगा आप लोगों को, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। और कोई प्रॉफिट अर्न होता है तो उस पर टैक्स पे करना पड़ता था इनको, ठीक है, पॉइंट क्लियर। सो नाउ अदर रीजंस वर, ये तो आपके दो बेसिक रीजंस हो गए, दीज आर टू बेसिक रीजंस, ठीक है। नाउ अदर रीजंस, लेट अस अंडरस्टैंड दी अदर रीजंस एज वेल। बाकी के कॉजेज क्या थे बिहाइंड द बैटल ऑफ प्लासी? द अदर रीजंस वर, फर्स्ट इज फोर्टिफिकेशन ऑफ कैलकटा। अब ये क्वेश्चन इस बार प्रीलिम्स 2020 में आया था, दिस क्वेश्चन केम इन प्री 2020, ओके, फोर्टिफिकेशन ऑफ कैलकटा, दिस इज अनदर रीजन, ठीक है, बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बाय द ब्रिटिश, एंड दैट टू विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ द नवाब। नवाब की परमिशन ली नहीं और किले बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। दे स्टार्टेड फोर्टिफाइंग कैलकटा, पूरे कैलकटा में अपनी फैक्ट्रीज के आसपास किले बनाने शुरू कर दिए। दे स्टार्टेड मेकिंग द forts, constructing the forts. We have discussed 2020's preliminary history questions in our special classes last month. हमने लास्ट मंथ सॉल्व किए थे ना 2020 प्री के क्वेश्चंस, तो उसमें हमने पढ़ा था क्वेश्चन फोर्ट विलियम के ऊपर, राइट। So over here, fortification of Calcutta was done by the Britishers without Nawab's permission. This was another reason why Nawab of Bengal was not happy with the British East India Company. ठीक है, and it is said in the last class we studied what were forts. Forts क्या होते थे? Symbol of power. Forts were the symbol of power. ठीक है, एंड नाउ यू आर क्रिएटिंग फोर्ट्स, यू बीइंग अ स्ट्रेंजर कंट्री, स्ट्रेंजर कंपनी, यू आर क्रिएटिंग फोर्ट्स इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये कहा गया कि भैया तुम तो स्ट्रेंजर हो, बाहर से आए हो, यू आर स्ट्रेंजर, यू हैव कम फ्रॉम आउटसाइड, हु गेव यू द परमिशन टू क्रिएट कंस्ट्रक्ट फोर्ट्स ओवर हियर? किसने परमिशन दे दी भैया आपको यहाँ पर फोर्ट्स बनाने की, ठीक है, किले बनाने की? ये राइट तो राजा के पास होता है ना कि वो यहाँ पर किले बनाए या ना बनाए। टू क्रिएट फोर्ट्स द राइट इज विद द किंग, ठीक है। सो दैट इज वाई सिराजुद्दौला वॉज वेरी एंग्री, इसीलिए सिराजुद्दौला काफी नाराज थे कि यहाँ पर राजा बनने की कोशिश कैसे कर रहे हैं, वाई दे आर ट्राइंग टू बिकम किंग्स, ओके। सेकेंड रीजन यहाँ पर क्या आएगा? सेकेंड रीजन इज मिसलीडिंग द नवाब ऑन वेरियस fronts by British. Now I told you that the Britishers were not paying their taxes. Britishers टैक्स तो पे कर नहीं रहे थे, ठीक है। एंड व्हेन द नवाब यूज्ड टू आस्क फॉर देयर प्रॉफिट्स, जब नवाब पूछता था भैया कितना प्रॉफिट हुआ हमें भी बताओ, राइट, यू हैव टू अकाउंट फॉर योर प्रॉफिट्स, यू आर डूइंग योर ट्रेड इन माई स्टेट, आप मेरे स्टेट में ट्रेड कर रहे हो तो टेल मी योर प्रॉफिट्स। दे यूज्ड टू मिसलीड द नवाब, कम प्रॉफिट बताते थे, लॉस दिखाते थे कि भैया कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, ठीक है। दे यूज्ड टू मिस रिपोर्ट देयर प्रॉफिट्स इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम पेइंग द टैक्सेस, अपने आप को टैक्स पे करने से बचाने के लिए मिसलीड करते थे, टैक्स की चोरी कर रहे थे, ठीक है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, थर्ड पॉइंट हो जाता है एन असाइलम। नेक्स्ट पॉइंट ओवर हियर इज दैट एन asylum it was provided, an asylum was provided to Nawab's enemy, that is कृष्णदास। कृष्णदास जो थे वो नवाब ऑफ बंगाल के एनिमी थे, ठीक है। तो उनकी एनिमी को प्रोटेक्शन कौन दे रहा था? ब्रिटिशर्स। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू नवाब्स एनिमी। दिस वाज अनदर पॉइंट वाई सिराजुद्दौला वाज अनहैप्पी विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये एक और पॉइंट था कि क्यों सिराजुद्दौला जो हैं वो नाराज थे, बिकॉज दे वर बीफ्रेंडिंग नवाब्स एनिमीज, राइट। वो नवाब की एनिमी से दोस्ती कर रहे थे, दुश्मनों से दोस्ती की जा रही थी, तो इसलिए नवाब को थोड़ा शक हुआ, ठीक है। देवर Nawab was very you can say angry or very infuriated and irritated by the Britishers, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। Now East India Company, the Britishers East India Company, they had a very strong presence in India, ठीक है। और मेजरली अगर हम देखें तो एक फोर्ट हुआ करता था जिसको बोलते थे फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। देन वी हैड अनदर फोर्ट विच वाज नोन एज फोर्ट सेंट विलियम। सेंट विलियम के ऊपर क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था 2020 प्री का, ठीक है। एंड देयर वाज अनदर कासल दैट वाज नोन एज बॉम्बे कासल, ठीक है। तो आपको पता है ये कहाँ पर थे? जहाँ लड़ाई हुई थी वहीं पर ही थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन बंगाल फोर्ट सेंट विलियम था, सेंट जॉर्ज थे, आपके बॉम्बे कासल था, ठीक है। सो दीज वर द एरियाज वेयर द ब्रिटिशर्स वर इंक्रीजिंग देयर डोमिनेशन।
दे वर इंक्रीजिंग देयर प्रेजेंस, अपनी प्रेजेंस इंक्रीज कर रहे थे, डोमिनेशन इंक्रीज कर रहे थे, ठीक है. दीज वर द एरियाज and these were the areas where they were creating forts as well, forts which were just the prerogative of the rulers. सिर्फ rulers ही बना सकते थे forts और कोई नहीं, और यहाँ पर ब्रिटिशर्स बना रहे हैं forts. That was the major problem why Nawab of Bengal Sirajuddaulah was unhappy. Okay, major causes समझ आ गए सभी को. Let's move forward, आगे बढ़ते हैं. So over here we have understood so far हमने ये पढ़ा है which were the parties involved. Battle of Plassey, decisive victory of British East India Company, सिराजुद्दौला के against थे, and in 1757 it was fought. Now on one side we had Robert Clive, ठीक है, and on the other side सिराजुद्दौला, but still सिराजुद्दौला was backed and supported by French East India Company. Still they lost. फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सपोर्ट किया था सिराजुद्दौला को, फिर भी हार गए. वाई डिड दे लूज द बैटल? बिकॉज the army general Mir Jafar Ali, ठीक है, he was the one who betrayed his own leader. So now over here Mir Jafar was the army general of Sirajuddaulah and he betrayed his own leader, his own, it's his own king. Why? Because the Britishers told him that if you support us in this battle, ठीक है, then the next king in the history of Bengal, the next king will be you, ठीक है, विल बी कमिशनिंग यू एज द नेक्स्ट किंग इन बंगाल. हम सिराजुद्दौला को हटाकर आपको बिठा देंगे, ठीक है. तो मिर जाफर जो थे वो जनरल थे, आर्मी जनरल थे, पर वो राजा के पीठ पीछे चाकू घोंपने की प्लानिंग कर रहे थे. मिर जाफर वॉज द आर्मी जनरल बट ही वॉज प्लानिंग टू बिट्रे हिज ओन किंग जस्ट फॉर द ग्रीड ऑफ बिकमिंग द नेक्स्ट किंग. उनके अंदर लालच था कि भैया मुझे दूसरा राजा बनना है. एंड रॉबर्ट क्लाइव प्रॉमिस्ड मिर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव ने प्रॉमिस किया मिर जाफर को दैट वी विल मेक यू द नेक्स्ट किंग इफ यू सपोर्ट अस इन दिस बैटल एंड बिट्रे सिराजुद्दौला. अगर आप सिराजुद्दौला को हराने में हमारी मदद कर दो तो हम आपको बना देंगे दूसरा राजा. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रही है. तो मिर जाफर ने क्या किया, अपनी आर्मी को बीच से लेकर ही निकल गया. ठीक है, व्हाट डिड मिर जाफर डू? इन द मिड ऑफ द बैटल ही वेंट बैक विद हिज सेट ऑफ आर्मी. ठीक है, एंड सिराजुद्दौला लॉस्ट द बैटल. उसने यू टर्न मार लिया और बीच में सिराजुद्दौला अकेले पड़ गए. ठीक है, एंड ही लॉस्ट द बैटल. नाउ दिस बैटल टुक प्लेस इन पालाशी. पालाशी को इंग्लिश में प्लासे बोलते हैं. पालाशी इन इंग्लिश इज नोन एज प्लासे. द प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश इज प्लासे. ठीक है, एंड इट इज अ विलेज, वेरी स्मॉल विलेज ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर. बंगाल में ही है ये विलेज. ठीक है, हुगली रिवर के बैंक पर है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ठीक है, नाउ कॉजेज वी हैव अंडरस्टूड. हमने कॉजेज भी पढ़ लिए अच्छे से. ठीक है, नाउ व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द बैटल? इस बैटल का रिजल्ट क्या था? Here, what was the outcome of the battle? The battle helped the company seize control of Bengal. British East India Company eventually took control of Bengal because Sirajuddaulah was defeated. ठीक है, एंड ओवर द नेक्स्ट 100 years ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बैडली एक्सप्लॉइटेड बंगाल. पूरे बंगाल को खत्म कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने. इतनी बुरी तरीके से एक्सप्लॉइटेशन वहाँ किया. ठीक है, ऑल दी सेक्टर्स, ऑल दी एरियाज इन बंगाल वर एक्सप्लॉइटेड वेरी बैडली बाय ब्रिटिशर्स. काफ़ी बैडली, काफ़ी बुरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने बंगाल को लूटपाट वहाँ पर मचाई. एंड द इफेक्ट ऑफ द बैटल वॉज इट स्टार्टेड द पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश ऑन इंडियन सबकॉन्टिनेंट. फाइनली ब्रिटिशर्स एंटर्ड द पॉलिटिकल डोमेन इन इंडिया. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? तो जल्दी से बता दीजिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट बैटल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज बैटल ऑफ बक्सर. अब जो दूसरा बैटल हम पढ़ने वाले हैं वो होगा आपका बैटल ऑफ बक्सर. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, ऑफ ऑल द बैटल्स फॉट बाय ब्रिटिश इन इंडिया, ऑफ ऑल द बैटल्स विच वर फॉट बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया, बैटल ऑफ बक्सर paved the way for expansion and consolidation of British Empire in India. Battle of Buxar जो था उसी से ब्रिटिश एम्पायर फाइनली एक्सपैंड होता है, कंसोलिडेट होता है ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में. एग्जामिन. ओके, सो नाउ दिस बैटल वाज फॉट इन द ईयर 1764. ये बैटल जो है 1764 में लड़ा गया था. इन 1764 दिस बैटल वाज फाइनली फॉट एंड द डेट वाज 22nd और 23rd October. 22 या 23 अक्टूबर 1764 दिस बैटल वाज फॉट एंड इट वाज फॉट बिटवीन टू पार्टीज. ऑन वन साइड वी हैड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. एक साइड पे हमारे पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी एंड इट वाज लेड बाय, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, राइट इट डाउन, इट वाज लेड बाय हेक्टर मुनरो. मुनरो का नाम तो सुना होगा सबने.
ठीक है, हेक्टर मुनरो, ठीक है, एंड वी हैड द कंबाइंड आर्मीज ऑफ मीर कासिम, हमारे पास कंबाइंड आर्मी थी मीर कासिम की, यहाँ आते हैं आपके मीर कासिम, हेयर वी हैव मीर कासिम, ऑन वन साइड वी हैड हेक्टर मुनरो, ठीक है, ऑन द अदर साइड वी हैड मीर कासिम, देन वी हैड शाह आलम टू, मुगल एम्परर, शाह आलम टू कौन थे, लेटर मुगल, ही वॉज द लेटर मुगल, देन वी हैड शुजा उद्दौला, यहाँ पर हमारे पास शुजा उद्दौला भी थे, ठीक है, एंड वी हैड राजपूत रूलर ऑल्सो, राजा बलवंत सिंह, दीज नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स, रिमेंबर इट, ठीक है, इसको याद रखिएगा, मीर कासिम, शाह आलम टू, शुजा उद्दौला, राजा बलवंत सिंह, ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। तो ये मेजर रूलर्स थे जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बैटल लड़ा। नाउ इन बोथ द बैटल्स, दोनों ही बैटल्स में हमारे पास एक कॉमन चीज थी, वी हैड वन थिंग कॉमन इन बोथ द बैटल्स, दैट वाज लैक ऑफ लॉयल्टी, लैक ऑफ लॉयल्टी। इन बैटल ऑफ प्लासी ऑल्सो, ठीक है, वी हैड मीर जाफर, व्हाट डिड ही डू, ही बैकस्टैब्ड हिज ओन किंग, मीर जाफर ने अपने ही राजा को पीठ में चाकू घोंप दिया, ठीक है, चीटिंग कर दी, ट्रेटर। एंड नाउ इन दिस बैटल ऑल्सो वी हैड लैक ऑफ लॉयल्टी बिटवीन मीर कासिम एंड शुजा उद्दौला, इन दोनों के बीच में लॉयल्टी की कमी थी, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। शाह आलम टू भी थे एंड राजा बलवंत सिंह वॉज द राजपूत रूलर, जिनका रोल बहुत छोटा सा था, इन्होंने बस अपनी आर्मी प्रोवाइड की थी, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। द मराठाज एंड द राजपूत दे डिड नॉट लाइक द ब्रिटिशर्स, पता है ना आप लोगों को कि मराठाज और राजपूत को ब्रिटिशर्स बिल्कुल नहीं पसंद थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस बैटल, अगर हम रिजल्ट की बात करें, व्हाट वाज द रिजल्ट, ठीक है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस बैटल, रिजल्ट वाज ऑब्वियसली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वन द बैटल। कौन जीतेगा, लॉयल्टी ही नहीं है, देयर इज लैक ऑफ लॉयल्टी ओवर हियर इन इंडियंस, सो हु विल विन, ब्रिटिशर्स वन द बैटल अगेन। एंड दिस बैटल वाज फॉट नियर बक्सर, कहाँ पर लड़ा गया था ये बैटल, बक्सर के पास। वेयर इज बक्सर, इट इज अ नगर परिषद सिटी ऑफ बिहार, ठीक है, बिहार में ये एक नगर परिषद सिटी है बक्सर। रिमेंबर दिस फॉर प्रीलिम्स, ये जो मैं चीजें आपको लिखवा रही हूँ इसको प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को, तो जल्दी से बताएं, इफ द पॉइंट इज क्लियर लेट मी नो। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं रीजंस, ठीक है, व्हाई दिस बैटल ऑफ बक्सर was fought and what happened after this battle of Buxar. Only then we will understand what was the importance of battle of Buxar. जब तक हमें पता ही नहीं होगा क्यों लड़ा गया, इसके बाद क्या हुआ, तब तक कैसे जानोगे, ओके। So when we talk about the reason, what are the key reasons, हम key reasons पढ़ने वाले हैं, key means very important reasons. First is, write it down, the Mir Qasim, जो Mir Qasim थे, he wanted to be independent. Write it down, he wanted to be independent, he wanted to be independent and that is why he shifted his capital, इसीलिए इन्होंने क्या किया, अपने कैपिटल को शिफ्ट कर लिया, he shifted his capital to मंगर फोर्ट, ठीक है, इन्होंने मंगर फोर्ट में अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया फ्रॉम कैलकटा। कहाँ से आए थे ये, कैलकटा से आए थे, he shifted his capital from कैलकटा, ठीक है, टू मंगर फोर्ट। he wanted independent rule, ठीक है, never wanted anybody else to interfere. Britishers were also interfering, local जमींदार्स were also interfering in Calcutta. कैलकटा में जो लोकल जमींदार थे वो भी इनके रूल में इंटरफेयर करते थे। Britishers also used to interfere. So he said, I want to rule independently. ठीक है, I want to have all the power by my own self. पूरी पावर मुझे बस अपने हाथों में ही चाहिए, तो मुझे इंडिपेंडेंट रूल चाहिए, ठीक है। सो ही सेड, आई एम गोइंग टू मंगर फोर्ट एंड आई विल बी रूलिंग ओवर देयर इंडिपेंडेंटली, ठीक है। सो व्हाट ही डिड, इन्होंने किया क्या, that he also hired, write it down, he also hired the foreign experts, ठीक है, he hired the foreign experts to train his army, some of whom were in direct conflict or were in direct fight. They were in direct conflict, or you can say they were in direct fight with the Britishers. It is said that they were a part of the French army, ठीक है, तो वो फ्रेंच आर्मी के ही पार्ट थे, इसलिए ब्रिटिशर्स को आया गुस्सा। सो मंगर फोर्ट इज इन बिहार, ओके,
Now it is said to train his army he used the help of some of the military men of French East India Company. French East India Company की जो military थी ना, उनकी help ली. And we all know in the last class we had studied that the Britishers and French, they were not friendly on friendly terms with each other. एक दूसरे के साथ friendly terms पे नहीं थे French और Britishers. Okay, they were rivals. Yes, ठीक है. So that is why the Britishers got agitated. Britishers को आया गुस्सा. एक तो ये इंडिपेंडेंट रूल करने की कोशिश कर रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज ट्राइंग टू डू इंडिपेंडेंट रूल, दिस मीर कासिम, एंड देन ही इज टेकिंग द हेल्प, ही इज नॉट टेकिंग हेल्प फ्रॉम अस, ही इज टेकिंग हेल्प फ्रॉम आवर राइवल. ये करना क्या चाहता है? व्हाट डज ही वांट टू डू? राइट, बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम आवर राइवल, व्हाट इज ही शोइंग टू अस? हमें क्या शो करने की कोशिश कर रहा है? ठीक है. एंड ही ऑल्सो ट्रीटेड, राइट इट डाउन, ही ऑल्सो ट्रीटेड द इंडियन मर्चेंट्स, the Indian merchants and the English, that is the Britishers, as same. Now what is the meaning of this statement that he treated Indian merchants and English as same? The statement means that there were no privileges which were given to Britishers. यानी कि Britishers को भैया कोई privileges नहीं मिलेंगे. जैसा अपने भारतीय ट्रेडर्स हैं वैसे ही तुम Britishers हो. वो टैक्स दे रहे हैं, तुम भी टैक्स दो. द इंडियन मर्चेंट्स आर ऑल्सो पेइंग द टैक्स, सो यू ऑल्सो पे द टैक्स. देर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड द लोकल इंडियन ट्रेडर्स. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी प्रिविलेजेस. क्यों? किस बात के टैक्स बेनिफिट? ट्रेड कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, टैक्स दो. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है. सो दीज वर द फैक्टर्स दैट फ्यूल्ड द इंग्लिश टू ओवरथ्रो हिम. And a very massive war, it broke out between Mir Qasim and the company, and in 1763 finally 1763 में एक बहुत बड़ा war निकल पड़ता है, चालू हो जाता है मिर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में. सो ओरिजिनली इट वाज बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड मिर कासिम. ओरिजिनली ये जो वॉर है, ये जो बैटल है, ये मिर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच का बैटल है. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. ऑल दीज अदर पार्टीज दे जस्ट सपोर्टेड मिर कासिम. ये जो बाकी की पार्टीज मैंने लिखवाई थी ना, इन्होंने सपोर्ट किया है मिर कासिम को. रियल बैटल वॉज बिटवीन मिर कासिम एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ओके, अब आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने से पहले वी विल स्टडी द पार्टिसिपेंट्स ऑफ बैटल ऑफ बक्सर. नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं हु पार्टिसिपेटेड इन द बैटल एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ दोज पीपल इन द बैटल. ठीक है, ओके. सो बिफोर वी मूव फर्दर, हियर इज द स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. आप सभी के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है 2 मिनट की. आप देख सकते हो कि अनअकैडमी ने 6 महीने के बैचेस लॉन्च किए हैं. अनअकैडमी हैज लॉन्च्ड 6 मंथ बैचेस, ठीक है, फॉर यूपीएससी सीएसई. और ये जो बैचेस है ना, ये आपके परसों से स्टार्ट हो रहे हैं. दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 18th of Jan. एंड आई एम टीचिंग कंप्लीट हिस्ट्री. मैं कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ इन दी हिंदी बैचेज ऑल्सो, इन दी इंग्लिश बैचेज ऑल्सो. ओके, देर आर 3 बैचेज ऑन अनअकैडमी प्लस, हिंदी, इंग्लिश एंड बाइलिंगुअल. So I am taking classes in English and Hindi batches. So it's starting from 18th of Jan. Complete syllabus coverage will be done. 1 year के भी batches हैं, 2 year के भी batches हैं. There are 1 year batch also, 2 year batch also. So you can subscribe before 18th Jan because classes start हो रही हैं. And within the specified time period, we will be covering entire syllabus of UPSC. Okay, from prelims till mains. Plus there will be interview preparation sessions also. Okay, आपको notes भी दिए जाएंगे. If you do not have the books, no issues. We will be providing you PDF. We will be providing test series, analysis, ठीक है, and complete syllabus coverage will be there. Then we have also launched NCERT batches, class 6 to class 12th. Again, they are starting from 18th of Jan only. Okay, Hindi, English, bilingual, all the batches are there. So if you are interested in these batches, you can use code SHARMA20 and subscribe today. Get 10% discount by using this code. ये कोड यूज करके ना आपको इजीली 10% ऑफ मिल जाएगा आपकी सब्सक्रिप्शन पर. ठीक है, तो ये कोड यूज कीजिए और आप सब्सक्राइब कर सकते हो 18th Jan से पहले, बिकॉज 18 Jan से आपके बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, चलो. सो नाउ वी वर ऑन द बैटल ऑफ बक्सर. ठीक है, हम बैटल ऑफ बक्सर पे थे. सो नाउ आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू क्रिएट दिस चार्ट विद मी. ये चार्ट आप मेरे साथ साथ बना सकते हो जो मैं बनाने जा रही हूँ. दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. इन द चार्ट ओवर हियर यू विल राइट द पार्टिसिपेंट्स. यहाँ पर आप लिखोगे पार्टिसिपेंट्स. वी आर स्टडिंग द बैटल ऑफ बक्सर. ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है. दिस इज बैटल ऑफ बक्सर. ठीक है, over here we have the participants in the battle of Buxar, and over here we are going to write role in the battle of Buxar. BOB means battle of Buxar.
ठीक है, एम आई क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? तो यानी कि किसने पार्टिसिपेट किया और किसका क्या रोल था, भूमिका क्या थी, रोल मीन्स भूमिका। ओके, फर्स्ट वी हैड मीर कासिम। सबसे पहले तो हमारे मिस्टर मीर कासिम आ जाते हैं, ठीक है। सो मीर कासिम he was administering बंगाल। मीर कासिम कहाँ किसको एडमिनिस्टर कर रहे थे, बंगाल को एडमिनिस्टर कर रहे थे इन प्लेस ऑफ मीर जाफर, ठीक है। सो वी हैड मीर कासिम। अब राइट ओवर हियर व्हाट वाज हिज रोल, इनका रोल क्या था, he tried to write it down, he tried to conspire against the British East India Company, or you can say English British East India Company। इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब जो आप पीठ पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो, साजिश करते हो, ठीक है, दैट इज कॉन्स्पिरेसी। ही ट्राइड टू कॉन्स्पायर अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाय फॉर्मिंग एन अलायंस, यानी कि ग्रुप बनाकर, अलायंस बनाकर, अलायंस मीन्स ग्रुप, बाय फॉर्मिंग एन अलायंस विद, किसके साथ बनाया, विद द नवाब ऑफ अवध। अवध वॉज ऑल्सो वेरी डिस्ट्रेस्ड अबाउट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अवध जो था वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से काफी परेशान था, ठीक है। एंड विद द मुगल एम्परर शाह आलम टू, ठीक है, यहाँ पर मुगल एम्परर थे शाह आलम टू, उनके साथ मिलकर और नवाब ऑफ बंगाल के साथ मिलकर, नवाब ऑफ अवध के साथ मिलकर ही स्टार्टेड कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। देन वी हैव शुजा उद्दौला। फिर हमारे पास आते हैं शुजा उद्दौला, हु वॉज द नवाब ऑफ अवध। ये कहाँ के नवाब थे, ये थे नवाब ऑफ अवध। रिमेंबर दिस फॉर प्रीलिम्स, ओके। अवध को हम अवध भी बोलते हैं। So what was his role? He was a part of confederacy. He was a part of confederacy with Mir Qasim. That means he was a part of the group of Mir Qasim. Mir Qasim के ग्रुप के ही ये पार्ट थे, and Shah Alam too. ठीक है, पॉइंट क्लियर? So he was a part of confederacy with Mir Qasim and Shah Alam too. Okay. Now second person that we had over here is Shah Alam II. अब second person हमारे पास कौन थे यहाँ पर, शाह आलम टू थे, who was a मुगल एम्परर। ये कौन थे, ये मुगल एम्परर थे। कॉन्फेडरेसी मीन्स ग्रुप, ओके, मुगल एम्परर, he was the मुगल एम्परर। and what was his role? he also wanted to overthrow इंग्लिश फ्रॉम बंगाल। ये भी इंग्लिश को, ब्रिटिशर्स को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। ही ऑल्सो न्यू दैट द ब्रिटिशर्स दे केम एज ट्रेडर्स, नाउ दे आर ट्राइंग टू रूल इन इंडिया। ट्रेडर्स बनकर आए थे, अब ये रूल कर रहे हैं। दैट इज रॉन्ग, वी आर द रियल रूलर्स, ओरिजिनल रूलर्स ऑफ इंडिया, राइट। सो ही ऑल्सो वॉन्टेड टू ओवरथ्रो बंगाल। देन वी हैड हेक्टर मुनरो। अब हमारे पास आते हैं यहाँ पर हेक्टर मुनरो। ही वॉज द आर्मी जनरल, आर्मी का जो मेजर होता है ना, ये वो थे। ही वॉज द आर्मी मेजर ऑफ ब्रिटिश, ठीक है, रिमेंबर दिस फॉर प्रीलिम्स। एंड ही लेड द बैटल फ्रॉम द इंग्लिश साइड। इन्होंने ब्रिटिशर्स के साइड से बैटल को आगे बढ़ाया, ठीक है। एंड नाउ वी हैव ऑल्सो रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव पार्टिसिपेटेड इन द बैटल आफ्टर द बैटल गॉट ओवर। जब ये बैटल खत्म हुआ तो रॉबर्ट क्लाइव ने इस बैटल में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। वाई? टू साइन द ट्रीटीज। ट्रीटीज साइन करवाई, यानी कि वॉर के जो अग्रीमेंट्स होते हैं वो साइन करवाए इन्होंने, कि अब आगे से आप हमारे खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं रचोगे, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया? नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस बैटल। इस बैटल में होता क्या है, कोर्स ऑफ द बैटल समझ लेते हैं। व्हाट वाज द कोर्स ऑफ द बैटल? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 1, ओके। नाउ होता क्या है, दिस बैटल ब्रोक आउट इन 1763, बट दे से दैट द ऑफिशियल ईयर ऑफ द बैटल इज 1764, ठीक है। बैटल जो था वो अनाउंस 1763 में ही शुरू हो चुका था, फाइट शुरू हो चुकी थी। मेजर बैटल टुक प्लेस इन 1764, बट आपको ये याद रखना है दैट द ईयर ऑफ ब्रेकिंग आउट ऑफ दिस बैटल वाज 1763, ठीक है। नाउ यहाँ पर होता क्या है, व्हेन दिस बैटल स्टार्ट्स, ठीक है, जब ये बैटल शुरू होता है, सब्सिक्वेंटली इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द बैटल ब्रिटिशर्स वर विनिंग इट। ब्रिटिशर्स जो है इस बैटल को जीत रहे थे। मिर कासिम स्टार्टेड द बैटल विद द ब्रिटिशर्स। मिर कासिम ने बैटल स्टार्ट किया ब्रिटिशर्स के साथ। एंड व्हेन ही सॉ दैट द ब्रिटिशर्स आर विनिंग दिस बैटल, जब उन्होंने देखा कि भैया ब्रिटिशर्स तो ये बैटल जीत रहे हैं, सो व्हाट डिड ही डू? मिर कासिम ने किया क्या? राइट इट डाउन दैट मिर कासिम
ही फ्लेड टू अवध, कहाँ भाग गए ये, अवध भाग गए, ठीक है। इनिशियली ही वाज फाइटिंग दिस बैटल सिंगल हैंडेडली, अकेले लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, बट व्हेन ही सॉ दैट द ब्रिटिशर्स आर ट्राइंग टू ओवरपावर हिम, जब इन्होंने देखा कि भाई ब्रिटिशर्स तो ओवरपावर कर रहे हैं हमें, ही फ्लेड टू अवध, ये भाग गए भाई अवध में, ठीक है। एंड ही फॉर्म्ड अ कॉन्फेडरेसी, यानी कि एक ग्रुप बना लिया, ही फॉर्म्ड एन अलायंस और यू कैन से अ ग्रुप विद शुजा उद दौला, शुजा उद दौला के साथ इन्होंने बना लिया एक अलायंस। एंड शाह आलम टू, किसके साथ बनाया, शाह आलम टू को भी अपने ग्रुप में ले लिया और शुजा उद दौला को भी ले लिया अपने ग्रुप में, ठीक है। एंड ही सेड सिंगल हैंडेडली आई कैन नॉट डिफीट द ब्रिटिशर्स, अकेले तो मैं नहीं हरा पाऊंगा, आई नीड हेल्प, सो ही टुक हेल्प फ्रॉम शुजा उद दौला एंड शाह आलम टू, ठीक है। एंड मीर कासिम्स मेन एम वॉज टू स्नैच अवे बंगाल फ्रॉम ब्रिटिशर्स, मीर कासिम का एम यही था कि भाई मैं बंगाल को जीत लूं ब्रिटिशर्स से, ठीक है। सो फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओवर हियर इज, फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे दैट मीर कासिम ही फ्लेड टू बंगाल, सॉरी अवध, ठीक है, ये अवध भाग जाते हैं, ठीक है। सेकेंड, ही प्लान्ड अ, राइट इट डाउन, he planned a confederacy with Shuja ud Daula, SUD means Shuja ud Daula, and second with Shah Alam II, SA means Shah Alam, ठीक है, Shuja ud Daula and Shah Alam II, and he planned a confederacy, a grouping, an alliance to overthrow the Britishers, क्या ग्रुप बनाया इन्होंने, ब्रिटिशर्स को भगाने का, निकालने का बंगाल से, ठीक है, दैट आई वॉन्ट टू ओवरथ्रो द ब्रिटिशर्स फ्रॉम बंगाल, सो ही प्लान्ड एन अलायंस, ठीक है। अब फिर आगे क्या होता है, राइट इट डाउन, दैट मीर कासिम्स सोल्जर्स और यू कैन से आर्मी, दे मेट द इंग्लिश ट्रूप और द ब्रिटिश ट्रूप, मीर कासिम की जो आर्मी है वो ब्रिटिश ट्रूप का सामना करती है, डायरेक्टेड बाय, दिस ट्रूप वॉज डायरेक्टेड बाय हेक्टर मुनरो in 1764, बैटल स्टार्ट हो गया था 1763 में, द बैटल हैज स्टार्टेड इन 1763, बट मीर कासिम आफ्टर लुकिंग एट द माइटी आर्मी ऑफ ब्रिटिशर्स फ्लेड अवे, भाग ही गया छोड़कर मैदान, and he fled away to Awadh to gain support from Shuja ud Daula and Shah Alam II, and when he gained support he met the army of Britishers in 1764, it was led by Hector Munro, ठीक है। but what happened even after this joint army of Mir Qasim, ठीक है, even after this alliance of Mir Qasim, the joint army was defeated by Britishers, ठीक है। तो नेक्स्ट होता है that the joint army of Mir Qasim was defeated by the Britishers, हार गई भैया इनकी आर्मी, ठीक है। and what happened here, the point of loyalty will come, यहाँ पर लॉयल्टी की बात आएगी। बैटल किसने स्टार्ट किया था, मीर कासिम ने स्टार्ट किया था, ठीक है। मीर कासिम को गुस्सा आ रहा था ब्रिटिशर्स के ऊपर, इन्होंने चुनौती दी थी, ही चैलेंज द ब्रिटिशर्स, ठीक है। ही वेंट टू शुजा उद दौला एंड शाह आलम II, he convinced them to support him in the battle, okay, but when he was defeated by Britishers, what he did, he fled away from the battle, भाग गया वहां से इन दोनों को छोड़कर, he left Shuja ud Daula and Shah Alam II and fled away, absconded from the battlefield, okay, इनको अकेला छोड़ गया, पीछे से दुम दबाकर भाग गया। The person who started the battle, who dragged these two rulers in the battle, right, he left them on the battlefield and fled away, जब देखा कि भैया हार रहे हैं तो उनको वहीं छोड़ के खुद भाग गया छुपते छुपाते, ठीक है। सो ओवर हियर व्हाट डिड दे डू, शुजा उद दौला एंड शाह आलम II, दे हैड टू सरेंडर। अब बेचारे क्या करते, मरते क्या ना करते, सरेंडर ही कर दिया। उन्होंने बोला भैया हमें मरना नहीं है, सरेंडर कर रहे हैं तुम्हारे आगे, ठीक है। हमारा तो बैटल भी नहीं था, मीर कासिम के कहने पर हम आए थे, दिस वाज नॉट इवन आवर बैटल, वी जॉइंड दिस बैटल ऑन दी रिक्वेस्ट ऑफ मीर कासिम। इतने बड़े बड़े चांद तारे के सपने दिखाए, बीच में लाकर छोड़ दिया, ठीक है। पॉइंट क्लियर, सो दे सरेंडर्ड, एंड व्हेन दे सरेंडर्ड द ब्रिटिशर्स सेड ओके नाउ यू आर सरेंडरिंग बट यू पार्टिसिपेटेड इन द बैटल, तुम अभी सरेंडर तो कर रहे हो बट भैया तुमने पार्टिसिपेट किया था, यू ऑल्सो ट्राई टू स्टैंड अगेंस्ट अस, सो साइन अ ट्रीटी साइन कर लो। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वॉज साइंड, यहाँ पर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया गया इन 1765, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को यहाँ पर, प्लीज मुझे बताएं, ठीक है। सो व्हाट इज दिस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, अब ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या है, इसके कंडीशंस पढ़ लेते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दी कंडीशंस, ठीक है, ऑफ द ट्रीटी 1765, ठीक है। अब ये जो ट्रीटी थी ये किसके बीच में साइन हुई थी, वो वर दी साइनिंग पार्टीज,
तो साइनिंग पार्टीज वर रॉबर्ट क्लाइव एंड शुजा उद दौला। इधर से आए थे शुजा उद दौला, उधर से आए रॉबर्ट क्लाइव, दोनों ने मिलकर ट्रीटी साइन कर ली, ठीक है। नाउ हियर शुजा उद दौला अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी हैड टू सरेंडर इलाहाबाद। शुजा उद दौला ने क्या किया, इलाहाबाद को सरेंडर कर दिया। ही सरेंडर्ड इलाहाबाद, ठीक है। ही गेव इट टू शाह आलम टू। किसको दे दिया, शाह आलम टू को दे दिया। एंड शाह आलम टू बिकेम द पपेट किंग इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स। शाह आलम टू क्या बन गए, कठपुतली बन गए, ठीक है। ही बिकेम द पपेट रूलर इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स। चलो, so यहाँ पर शुजा उद दौला he had to surrender Allahabad to Shah Alam II and Shah Alam II was made the puppet ruler in the hands of Britishers। अब ब्रिटिशर्स किसके कंधे पे रख के बंदूक चला रहे थे, शाह आलम II के, ठीक है। एंड शुजा उद दौला, पुअर शुजा उद दौला, he had to pay ₹50 लाख, ठीक है, टू द कंपनी एज वॉर इंडेमनिटी। यानी कि बोला देखो तुम्हारी वजह से खामखा हमारा इतना खर्चा हो गया। Britishers said because of you unnecessary we had to do all these expenses in the war, so pay us ₹50 lakh as war indemnity, ठीक है। हम तुम्हारी वजह से इतना खर्चा हुआ है, 50 लाख रुपए दो। एंड at that time 50 lakhs were a very huge amount। उस टाइम पर 50 लाख काफी बड़ा अमाउंट था, ठीक है। जैसे आज के टाइम पे करोड़ होते हैं ना, 1 करोड़ 2 करोड़, वैसे 50 लाख उस टाइम पर था, ठीक है। एंड ऑल्सो ही वॉज मेड टू गिव राजा बलवंत सिंह फुल पोसेशन ऑफ हिज एस्टेट। यहाँ मैंने आपको बताया था ना, राजा बलवंत सिंह, राजपूत रूलर हु पार्टिसिपेटेड, ही ऑल्सो बिकेम द पपेट रूलर इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके राजा बलवंत सिंह हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी आर्मी का सपोर्ट दिया था, फंस गए, ठीक है। ही ऑल्सो बिकेम द पपेट रूलर इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स। सो शुजा उद दौला को कहा गया, शुजा उद दौला वॉज टोल्ड दैट गिव योर ऑल द लैंड पोसेशंस, आपके पास जितनी जमीनें हैं, all the lands that you have, give it to Raja Balwant Singh, he will manage them, whatever earnings will be incurred on the lands he will give them to us। उस जमीन में जितनी भी earnings होगी राजा बलवंत सिंह हमको देगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। now very clearly notice one thing, very clearly, Robert Clive, that means the Britishers, they made 2 puppet rulers over here, Raja Balwant Singh and Shah Alam II। Mughal ruler, the later Mughal, he became the puppet ruler of Britishers। So that means direct political domination शुरू कर दिया इन्होंने। एक मुगल रूलर को, उस वक्त मुगल रूलर जो था वो सेंट्रल रूलर था इंडिया में। At that time the Mughal ruler was the central ruler and he became the puppet ruler in the hands of Britishers। Even the Rajput rulers went under the hands of Britishers। Even he took 50 lakh rupees as war indemnity which was not required, ठीक है। He also, the Britishers also captured Allahabad and Awadh, कैप्चर कर लिया। तो इसलिए बोला जाता है, that is why it is said that Battle of Buxar is the battle which changed the political scenario of entire country। देखो बैटल ऑफ प्लास ने तो बंगाल का रूप बदला, the battle of Plassey it changed the political face of Bengal, but battle of Buxar changed the political face of entire nation because now the Mughal king came under direct control of Britishers। अब यहाँ पर जो एक मुगल किंग है, central authority in India, it came under the direct control of Britishers। This was the effect of this battle। अभी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी से बताओ। Let us have a look at Robert Clive, ठीक है। तो when we talk about Robert Clive over here, first important point about Robert Clive is he was the first British governor of Bengal presidency। ये आपका पॉइंट है इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी? योर रॉबर्ट क्लाइव वाज। एंड रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर न्यूज़पेपर्स में, एडिटोरियल्स में काफ़ी एडिटोरियल्स आए, इवन इन द इंडियन एक्सप्रेस, इवन इन द हिंदू न्यूज़पेपर, इवन इन टाइम्स ऑफ इंडिया। There have been many editorials, many articles on Robert Clive. Why? Because it is said that Robert Clive से ज़्यादा चालाक और ज़्यादा करप्ट कोई नहीं था। He was an absolute money-minded person. He used to run after money. He used to say that जिसके पास ज़्यादा पैसा, उससे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं होता, ठीक है। He was a kind of person who used to say that if you have lot of money, only then you can rule properly, only then the world can bow down in front of you। Humanity, love, care, compassion, these are waste terms। ये जो प्यार है, इज्जत है, compassion, दया, दरिया दिली, ये सब वेस्ट चीजें हैं, ठीक है। असली राजा वही है जो जिसके पास पैसा है। सो ही वॉज एक्सपेंशनिस्ट इन नेचर।
कैपिटलिस्ट इन नेचर, प्लस ही हैड नो कंपैशन, कोई कंपैशन नहीं था, ठीक है। सो मेजर जनरल रॉबर्ट क्लाइव बिकेम द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। ही ऑल्सो स्टार्टेड एज अ राइटर फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी, एक तरीके से एडिटर बनकर शुरू हुआ था, ठीक है। हिज प्रोफेशनल जर्नी स्टार्टेड एज एन एडिटर, एज अ राइटर, बट देन he established the military and political supremacy of East India Company in India and he was liked by the British government. British government इनको काफ़ी पसंद किया करती थी and his victory at Battle of Plassey made him famous in entire India, not just in the eyes of British government but in India also he became very famous, काफ़ी infamously famous हो गए, ठीक है, जब इन्होंने Battle of Plassey जीता, ठीक है। He is known as Clive of India. This is important for prelims. इनको इंडिया का क्लाइव माना जाता है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्लाइव। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म क्लाइव? क्लाइव का मतलब क्या होता है? देखो, क्लाइव एक ऐसा वर्ड, डिक्शनरी में कोई वर्ड नहीं अलग से क्लाइव, देयर इज नो सेपरेट मीनिंग ऑफ क्लाइव, ठीक है। क्लाइव ऑफ इंडिया मीन्स एक इनके नाम के ऊपर एक कहानी, एक आप कह सकते हो टाइटल बन गया कि जो भी इंसान मनी माइंडेड होता है, लेस कंपैशनेट होता है, ग्रीडी होता है या एक्सपेंशनिस्ट होता है नेचर में, चालाक होता है, ठीक है, उसको हम क्लाइव बोलते हैं। बिकॉज ऑफ रॉबर्ट क्लाइव्स इनफेमस पर्सनैलिटी, एवरी ग्रीडी माइंडेड पर्सन, ग्रीड माइंडेड पर्सन और एवरी इनह्यूमन काइंड ऑफ पर्सन वॉज नाउ नोन एज क्लाइव। सो ही बिकेम द क्लाइव ऑफ इंडिया, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? तो ये बन गए भैया भारत के क्लाइव। Now moving towards his activities, what were his activities? Robert Clive's activities, when we talk about Robert Clive's activities, first of all he stayed in India from 1744 to 1753. ये था इनका टाइम पीरियड भारत में, 1744 से 1753, and he was so liked by British government. British government इनको इतना पसंद करती थी कि again and again they used to call him back to India. ये बाहर भी चले जाते थे ना, इनको वापस बुलाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, गो बैक टू इंडिया, वी नीड यू, राइट, हमें ऐसे चालाक आदमी की जरूरत है। सो ही वॉज कॉल्ड बैक टू इंडिया इन 1755 टू इंश्योर ब्रिटिश सुप्रीमेसी, राइट, बिकॉज द फ्रेंच वर राइजिंग इन पावर। फ्रेंच जो हैं वो पावर में बढ़ते जा रहे थे, राइज कर रहे थे, एंड इन ऑर्डर टू स्टॉप द फ्रेंच, इन ऑर्डर टू ब्रिंग देम डाउन, राइट, ब्रिंग देयर कंट्रोल डाउन, रॉबर्ट क्लाइव वॉज कॉल्ड बैक। He also became the deputy governor. अब मैंने आपको बताया था that the Britishers they were creating forts in India. Forts were the symbol of power. Forts क्या हुआ करते थे? Symbol of power हुआ करते थे. And the Britishers were creating forts in India in order to politically dominate India, ताकि इंडिया को politically dominate किया जाए. So in order to bow down the French or to take down the French and also protect British supremacy in India, in the Battle of Plassey Robert Clive was called. And even in Battle of Buxar, अभी हमने क्या पढ़ा यहाँ पर? Battle of Buxar में when the treaty was signed, it was signed between Robert Clive and Shuja'ud-Dawla. Again Hector Munro did not come forward because Hector Munro का उतना चालाक दिमाग नहीं था। जब ट्रीटीज की बात आती है तो कंडीशंस फ्रेम करने में रॉबर्ट क्लाइव के आगे मास्टर कोई नहीं था, right? Whenever any treaty was to be signed, any agreement was to be signed, Robert Clive was put forward because he was very clever. His conditions in the treaties were very cleverly framed. तो हर ट्रीटी में, हर चालाकी में रॉबर्ट क्लाइव को आगे किया जाता था, ठीक है। So even in Battle of Buxar, it was fought between Hector Munro and Mir Qasim, but when the treaty was signed, Robert Clive was called. यहाँ पर जब ट्रीटी साइन की गई तो रॉबर्ट क्लाइव को ही बुलाया गया और किसी को नहीं बुलाया गया, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को यहाँ पर? प्लीज लेट मी नो इफ द पॉइंट इज क्लियर। ओके, just give me a second. Now the next major battle that we are going to study is Battle of Panipat, ठीक है। नेक्स्ट मेजर बैटल हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका बैटल ऑफ पानीपत। नाउ द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इट वॉज फॉट इन 1526। ये जो बैटल आता है आपका ये 1526 में आता है, ठीक है। पॉइंट क्लियर? 1526 में आएगा एंड दिस बैटल वॉज फॉट नियर अ वेरी स्मॉल विलेज ऑफ पानीपत विच इज इन हरियाणा। लोकेशन इज इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के लिए आपका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड दिस बैटल मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। अब ये जो बैटल था ना, ये दो फोर्सेस के बीच में लड़ा गया था। एट वन साइड वी हैड द इन्वेडिंग फोर्सेस ऑफ बाबर। एक साइड पे हमारे पास आते हैं बाबर
and at the other side we had the emperor of Delhi Sultanate who was Lodi. ठीक है, तो हमारे पास एक टाइप पे बाबर था, मुगल डायनेस्टी थी, एक साइड पे लोधी डायनेस्टी थी, ठीक है, इब्राहिम लोधी. ओके, एंड दिस बैटल मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ बाबर मुगल पीरियड. मुगल पीरियड की स्टार्ट होता है इस बैटल से. ठीक है, नाउ इन दिस बैटल वी हैव इब्राहिम लोधी एट वन साइड, अदर साइड बाबर, एंड दिस वाज द लास्ट बैटल फॉट बाय द दिल्ली सल्तनत रूलर इब्राहिम लोधी. ठीक है, अब ये मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है. इब्राहिम लोधी का दिल्ली सल्तनत जो है वो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, सो नाउ फर्स्ट वी हैव रिमेंबर्ड द ईयर. पहले हमने याद कर लिया, वी हैव मेमोराइज्ड द ईयर इन दिस बैटल 1526. Second, we have understood who were the fighting parties: Babur from the Mughal Empire and Ibrahim Lodi from the Delhi Sultanate. Okay. Now, Babur's forces numbered around 15,000 men. यहाँ पर जो बाबर की फोर्सेस थी 15,000 लोग थे. ठीक है, and it is said that Ibrahim Lodi had an army of 30 to 40,000 men. इब्राहिम लोधी की जो आर्मी थी वो 30,000 से 40,000 आदमियों की थी. There were total 30 to 40,000 soldiers, and with Babur there were only 15,000 soldiers. But it is said, ऐसा माना जाता है, that Babur's army used guns to win this battle. They had technological advancement. यहाँ पर इनके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी. They had guns, बारूद था इनके पास और गन्स थी. आपको ये याद रखना है, to remember the number of the army it is not important, but you have to remember that Babur had very small force. आपको ये याद रखना है, बाबर की जो आर्मी थी छोटी थी. Even with small army he won this battle. ठीक है, वाई? बिकॉज ही वॉज वेल प्रिपेयर्ड. क्यों? क्योंकि वो वेल प्रिपेयर्ड थे. इट इज सेड इवन इफ यू हैव लेस टाइम बट यू आर वेल प्रिपेयर्ड, यू कैन विन एनीथिंग इन लाइफ. अगर आपके पास समय कम है या रिसोर्स कम है, इवन इफ यू हैव लेस रिसोर्सेज बट यू आर वेल प्रिपेयर्ड ओवर हेयर, ठीक है, आप स्ट्रैटेजिक हो, ठीक है, दिमाग से चल रहे हो, तो क्या होगा, आपकी जीत निश्चित है, भले ही आपके पास समय कम है. ठीक है, तो ही वॉज वेल प्रिपेयर्ड, ही हैड गन्स. ठीक है, एंड सुल्तान दैट इज इब्राहिम लोधी, ठीक है, इनके पास कोई भी फील्ड आर्टिलरी नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही नहीं था. ठीक है, एंड द साउंड ऑफ द कैनन्स, जो तोप होती हैं, ठीक है, द साउंड ऑफ द कैनन्स विच वर यूज्ड बाय बाबर्स आर्मी, इट फ्राइटेंड लोधीज एलिफेंट्स. उनका तो ट्रेडिशनल मेथड था लड़ने का. इब्राहिम लोधी डिड नॉट हैव एनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन हिज आर्मी. ही वॉज यूजिंग हिज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फाइटिंग द बैटल्स, राइट? So when the elephants in the army of Ibrahim Lodi, they heard the sound of the cannons of Babur's army, they got frightened, and because of which they trampled over the soldiers of Ibrahim Lodi. वहाँ पर जितने भी soldiers खड़े थे, हाथी इतने मचल गए, इतने डर गए कि वहीं कुचलने लगे अपने ही लोगों को. जो soldiers थे इब्राहिम लोधी के आर्मी के उन्हीं को कुचलने लगे. ठीक है, तो आधी आर्मी तो वहीं पर ही चली गई. ठीक है, हाफ ऑफ द आर्मी मैन, ठीक है, दे वेंट ऑफ. ठीक है, अब नाउ बाबर ने शुरू किए टैक्टिक्स यूज करने. ठीक है, द वेपन्स वर नॉट ऑल, इट वॉज बाबर्स टैक्टिक्स ऑफ तुलुगमा एंड अराबा दैट लेड हिम टू विक्ट्री. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. इफ यू आर टेकिंग डाउन नोट्स, प्लीज राइट इट डाउन. अगर आप नोट्स ले रहे हो, लिख लो. इट वॉज नॉट जस्ट द वेपन्स, ठीक है, इट वॉज नॉट जस्ट द वेपन्स दैट assured victory of Babur. It was also his tactics, war tactics. First is Tulugma, second is Araba. What is Tulugma? Tulugma क्या होता है? This is important for prelims. Tulugma means dividing the whole army into various units, left, right and center. मोर्चे बना देने. तुम यहाँ पर लेफ्ट में खड़े होगे, तुम राइट में खड़े होगे, तुम बीच में आओगे, चक्रव्यूह टाइप बना देना. ठीक है, Tulugma means you are dividing your army, you are placing there. See, he had very small army. बहुत छोटी आर्मी थी उनकी. So very cleverly he divided his army. Some people were sent to the right side, some people were marching towards the left side, some were in the center, and the left and right divisions were further subdivided into forward and rear divisions. ठीक है, so there was less army but it was categorized properly and it was subdivided properly. Forward army थी, rear divisions थे, and it was a small army but it could be used to surround the enemy from all sides because the placement, the location of the army was made very strategically. आर्मी को बहुत स्ट्रैटेजिकली लोकेट किया गया था. ठीक है, सेकंड टैक्टिक वाज अराबा. सेकंड वॉर टैक्टिक था इनका अराबा. व्हाट इज अराबा? द सेंटर फॉरवर्ड डिवीजन, द आर्मी, the category of army who were standing in the center forward position, they were then provided with carts. That means araba. Cart का मतलब araba, which were placed in rows facing the enemy and tied to each other with animal hide ropes. ठीक है, अब अराबा के पीछे जो था वो cannons थे.
आगे काट खड़ी कर दी और उसकी आड़ में पीछे तोप खड़ी कर दी और वहां से तोप चलाए जा रहे थे, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है। सो द कैनन्स कुड बी फायर्ड बिहाइंड द अराबा and they were shielded, cannons were shielded and protected by the araba. In the front we had carts who were protecting the cannons and then the cannons were being used, ताकि cannons को destroy ना किया जाए। पीछे कार्ट्स की आड़ में cannons को, तोपों को यूज किया जा रहा था। So the cannons were hidden behind the araba so that the enemy cannot attack the cannons or destroy them. Okay, point clear हो रहा है यहाँ तक, point clear? So the result was that Ibrahim Lodi he died on the field of battle only. इब्राहिम लोदी जो थे वो बैटल फील्ड पर ही खत्म हो गए। ही गेव अप हिज लाइफ इन द बैटल फील्ड, ठीक है, एंड हिज जनरल्स, द फ्यूडिटरीज, द लिटिल लोकल रूलर्स हु सपोर्टेड इब्राहिम लोदी, दे फ्लेड अवे, भाग गए वहां से छोड़ के इब्राहिम लोदी को। जिन लोगों ने सपोर्ट किया था सारे भाग गए एंड ही वॉज लेफ्ट अलोन टू डाई ऑन द बैटल फील्ड एंड बाबर अल्टीमेटली वन द बैटल। बाबर जो है फाइनली बैटल को जीत जाते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक तो जल्दी से बताएं। इफ द पॉइंट इज क्लियर प्लीज लेट मी नो। क्लियर हो गया पॉइंट? ओके, अब बात आती है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की। नाउ द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत इट वाज फॉट इन 1556। ये जो बैटल है वो 1556 में लड़ा गया and this was fought between the forces of Samrat Hemchandra Vikramaditya, who was known as Hemu also. He was a Hindu king, and the army of Akbar. So at one time we had the Hindu ruler, एक जगह तो हमारे पास हिंदू रूलर थे, and versus the मुगल रूलर्स। सेकेंड टाइम जगह हमें हमारे मुगल रूलर थे, ठीक है। सो here we had Hemu and here we had Akbar। यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं अकबर और वहाँ हमारे पास आ जाते हैं हेमू, ठीक है। एंड इट वॉज फॉट इन 1556 बट हेयर ऑल्सो हु वन द बैटल, इट वॉज अकबर्स जनरल किंग हु इज ऑल्सो नोन एज बैरम खान। ये जनरल थे अकबर के जो जीतते हैं एंड दे वर द टू वेरी फेमस जनरल्स ऑफ अकबर। नाउ व्हाई डिड अकबर नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इनटू द बैटल? बिकॉज ही वॉज टू स्मॉल टू पार्टिसिपेट। ही वॉज अराउंड 13 to 14 years old. That is why he was under training. So Akbar's general Khan Zaman I and Bairam Khan, they fought on behalf of Akbar and won the battle. ठीक है, ये लड़ते हैं इस बैटल को अकबर के खिलाफ और फाइनली इस बैटल को अकबर के नेतृत्व में और फाइनली वो इस बैटल को जीत जाते हैं। नाउ हियर सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य और हेमू, ही वॉज अ हिंदू एम्परर इन दिल्ली एंड व्हेन ही लॉस्ट दिस बैटल अकबर एक्वायर्ड दिल्ली। अकबर ने बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली दिल्ली को एक्वायर कर लिया, ठीक है। हेमू बिलोंग टू द रेवारी इन प्रेजेंट डे हरियाणा एंड ही वॉज ऑल्सो एन एडवाइजर टू शेर शाह सूरी सन इस्लाम शाह from 1545 to 1553. So basically you can say that he was also a part of the Delhi Sultanate, ठीक है। He was just an advisor and he had already won 22 battles, ठीक है, as the prime minister of Delhi Sultanate. That is why he became of the Suri dynasty, right? Suri dynasty के काफ़ी फेमस एडवाइजर रह चुके थे और उनके अंडर काफ़ी बैटल्स भी जीते थे इन्होंने। सो ही हैड दिस कॉन्फिडेंस दैट ही कुड वेरी वेल विन दिस बैटल एज वेल अगेंस्ट द अकबर, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल होता है 1761 में। सो द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस ऑन 14th Jan 1761 at Panipat, which is about 60 miles north of Delhi, between the Maratha Empire and King of Afghanistan, who is Ahmad Shah Durrani, ठीक है। अहमद शाह दुर्रानी और मराठा एम्पायर के बीच में थर्ड बैटल होता है पानीपत का। ऑन पानीपत देयर वाज अ मूवी ऑल्सो इन 2018, ठीक है। अर्जुन कपूर की एक मूवी भी आई थी पानीपत, जिसके अंदर दिखाते हैं अहमद शाह दुर्रानी और मराठा एम्पायर के बीच का ये बैटल। Militarily, the battle pitted the French supplied artillery and cavalry of Marathas against heavy cavalry and mounted artillery of the Afghans and Rohillas, which was led by Ahmad Shah Durrani and Najib-ud-Dawla. Now, देखो यहाँ पर आप बोलोगे मैम, but it was Shah Abdali who participated in the battle. See, Ahmad Shah Durrani was also known as Ahmad Shah Abdali. Okay, it's the same name. ठीक है, point clear. Now, it is considered as the biggest battle you can say which was fought in 18th century, because on one single day the river around Panipat became reddish in color and it stayed reddish in color for 7 days. एक ही दिन के अंदर
पूरा पानी जो था उस रिवर का, जो पानीपत के आसपास थी, वो पूरी लाल हो गई थी, इतने लोग मारे गए थे. देयर वाज सच ह्यूज अमाउंट ऑफ फैटलिटीज इन दैट बैटल दैट रिवर स्टेड रेड फॉर 7 days. 7 दिन तक वो जो नदी का पानी था वो खून से भरा हुआ था. सो दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट बैटल, एंड दिस बैटल ended the Maratha rule as well. Now what stands out in all the 3 battles of Panipat is that the dispute or reason for war was never city of Panipat. No, Panipat was always an entrance to Delhi. Panipat जो था वो हरियाणा में था, वो दिल्ली का एंट्रेंस था. तो पानीपत के लिए कोई नहीं लड़ रहा था. पीपल वर फाइटिंग फॉर मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इन इंडिया, दैट वाज दिल्ली. दे वांटेड टू कैप्चर दिल्ली. ओके, so Delhi was the main center, but through Panipat it could be acquired. So this was the reason why it was fought in Panipat. Okay, so this was today's class. I hope you enjoyed today's class. उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई हो. Also do not forget to take your Unacademy Plus subscription, which is starting from 18th Jan. 18th Jan से Unacademy Plus पे क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो आप फटाफट से अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि आप क्लास को मिस ना करें. ऑल्सो दी NCERT बैचेज आर स्टार्टिंग ऑन Unacademy Plus from 18th January. Okay, you can use this code Sharma20 to get 10% off on your Unacademy Plus सब्सक्रिप्शन. आप आराम से ये कोड यूज कर सकते हैं ताकि आपको 10% ऑफ मिल जाए आपके प्लस के सब्सक्रिप्शन पर. द लिंक is also given below in the description box. Thank you and have a beautiful day ahead.